सो तीन चीजें आप लोग याद कर चुके हैं, दिमाग में सेट है, देयरफॉर, हेंस, सो। ये सोच धीरे धीरे डेवलप करते जाना है ना। फिर उसके बाद बोला था जब हम लोग ऑप्शन में आएंगे तो हमें निगेट करके देखना है, और कुछ ऑप्शंस को तो हम लोग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज इट इज मेंशन, देन वी हैव टू व्हाट, एलिमिनेट इट। ध्यान से। एन ऑप्शन फर्स्ट, it is, I said that an innovative India will be inclusive as well as technologically advanced. An innovative India, और बहुत लाइट लेके चला करेंगे, do not come read anything with pressure. An innovative India will be inclusive as well as technologically advanced. Inclusive का मतलब जानते हैं ना, what is the meaning of inclusive? means I said that economical inclusion. Economic inclusion का मतलब क्या होता है? Yes, the section of the society who is economically excluded. Simple. Inclusion का उल्टा कहते हैं excluded. And who is excluded? Several people, those who do not have the bank account, they do not have knowing about the economy, they are simply producing but they are not the part of economy. Yes or not? तो उनको include करना है. तो economic inclusion, the similarly exclusion, social inclusion का मतलब those who are at the social level excluded. Yes or not? तो वी हैव टू, तो हमें जहां जहां पे जो जो लोग एक्सक्लूडेड है उस जगह पे उनको क्या करना है, लोगों को, चाहे वो कोई भी सेक्टर्स हो। यस और नॉट? यस और नॉट? तो हमें इंक्लूड करने का मतलब है इंक्लूजन। सो इट इज टॉकिंग अबाउट इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑल इंडियंस। समझ में आ गया? Therefore, the Indian people livelihood and life system will be अच्छा होगा। Therefore, सोच सकते हैं कि नहीं? Yes. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality and relieves the pressure created by rapid innovation and R&D can mitigate increase in and relieve the pressure created by. So can I say that therefore in India there will be egalitarian society? Yes or not? Therefore India will have what? Egalitarian means equal, everyone is equal in the eyes of what? Constitution, and everywhere it is what? Equality. यदि आप inequality को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? Which society? And relieve the pressure created by. Yes, urbanization का pressure से यही हो रहा है ना. What is the meaning of urbanization? Urbanization से one, it is I said that rural area, another side I said the urban area. So there is a large level of social inequality. Yes or not? है कि नहीं? That is social inequality. लेकिन यदि innovation और R&D होगा तो digitally we'll make the rural area to be strong also. And when that is also becoming strong means social inequality हम क्या कर रहे हैं? Reducing. और आज के डेट में इंडिया तो यही तो कर रहा है. You want to reduce digital divide at the level of what? Rural. Yes or not? Clear? अब मैंने जैसे ये बोला आपसे ड्यूरिंग द, आई से थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में जाके बात कर रहे हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी. तो ग्रीन रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? HIV, सॉरी, हाई यील्डिंग वैरायटीज. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, टेक्नोलॉजी, high level of what? Fertilizers, irrigation. Yes or not? ये सारी चीजें थी इसके अंदर. लेकिन ये सारे मशीनरीज कौन लेकर आएगा? ट्रैक्टर और मशीन. स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कौन कर पाएगा? बिग फार्मर्स. केमिकल फर्टिलाइजर हु कैन परचेज एंड हु कैन पे फॉर, आई सेड दैट, इरिगेशन. सो हु बिकेम रिच? Who has get benefited by the, I said that, green revolution? And there is a social inequality between what? Large farmers and, so large farmer become richer and richer and big farmer become what? Poorer and poorer. It is an, I said that, it is a social inequality. तो social inequality अभी हमें urbanization की वजह से people of urban area is increasing and then rural area is decreasing. but हमने बोला innovation लाएंगे, R&D लाएंगे, हम लोग एग्रीकल्चर को भी R&D और इनोवेशन से जोड़ेंगे, देन व्हाट विल हैपन?
all, yes, all India. I am not talking about, yes or not. And innovate India will be inclusive as well as technology. समझ में आ रहा है? Inclusive का मतलब everyone, those who are excluded. आप उस लाइन को यदि भूल जाएं तो मैंने हमेशा बोलता हूं कि इंक्लूजन को कैसे समझना है, जस्ट अपोजिट समझो. यस, एंड इनोवेट इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज. जब मैं कोई लाइन को दोबारा पढ़ूं इसका मतलब है आप थोड़ा एम्फेसिस दीजिए उसके ऊपर. एंड इनोवेटिव इंडिया विल बी इंक्लूसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑल. यस और नॉट? लाइव्स ऑफ ऑल इंडियन मीन्स ओनली अर्बन या रूरल एज वेल? ऑल. इनोवेशन एंड R&D कैन मिटिगेट इन, और इसका मतलब क्या निकला आपको? एवरी स्टेट ऑफ द सोसाइटी इज इंप्रूविंग. ऑल का मतलब इनोवेशन एंड R&D कैन मिटिगेट इंक्रीज. कैन का मतलब क्या होता है? श्योर और कैन, ध्यान रखेंगे. अंडरस्टूड इट? हाँ, यदि बोल दिया जाता है इज डूइंग दिस तो इसका मतलब श्योर. कैन का मतलब इट कैन. यस ना? इसका मतलब क्या है? प्रोबेबली, likely, not definitely. Yes or not? So I said that innovation and R&D can mitigate increase in social inequality, therefore there will be egalitarian society. Yes or not? And relieve the pressure created by rapid urbanization. इसका मतलब egalitarian society होगा. It is the growing divergence in the productivity between agriculture and knowledge intensive manufacturing and services threaten to increase the income inequality. Yes or not? The growing divergence in the productivity between agriculture, तो हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इज कंप्लीटली लेस, एंड द नॉलेज इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस. दो प्रकार के हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. यस और नॉट? सो एक नॉलेज इंटेंसिव manufacturing and service threatens to increase the income. Yes or not? So which are the two it is creating? Yes, knowledge intensive manufacturing and service. और कौन कर रहा है? इसका मतलब if there is, I said that अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं? growing divergence in what? productivity between agriculture and knowledge intensive manufacturing and services threaten to increase income. If it will be there, it will be not causing egalitarian society. सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं होगी. By encouraging India's R&D labs and university to focus on the needs of poor people. Yes, R&D labs, अभी बोला था innovation and R&D labs, and university to focus on the needs of the poor people by improving the ability of informal firms to absorb knowledge. तो जितने भी फर्म्स हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं या फार्मर्स हैं, उनको क्या करना है? इनोवेशन से हमें क्या इंक्लूड करना है? एब्जॉर्ब नॉलेज करवाना है उस सेक्टर्स में. एंड इनोवेशन एंड रिसर्च एजेंडा कैन काउंटर दिस इफेक्ट. इसका मतलब है सोशल इनइक्वालिटी को कम कर देगा. अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इगैलिटेरियन सोसाइटी. आई सेड दैट बाय इंक्रीजिंग इंडियाज R&D लैब्स, ये पहले भी मैंने बोला ये लाइन. यस और नॉट? इनोवेशन एंड R&D कैन बाय, I said that by increasing India R&D labs and university to focus on the needs of poor people. ये R&D किसके लिए होगा? Focus to the needs of, yes or not? और यूनिवर्सिटी भी जो पढ़ा रहा हो, नीड्स जो पढ़ाने के लिए बढ़ रहा हो आगे, it is for the focusing on the needs of the people and by improving the ability of informal firms, जो formal नहीं है, जो छोटे छोटे लेवल पे है, small लेवल पे, informal firms to absorb knowledge. और क्या absorb करेंगे वो? Innovation एंड रिसर्च एजेंडा. क्या क्या एब्जॉर्ब करना उन्हें? जो छोटे लेवल पे है, नॉलेज, इनोवेशन एंड रिसर्च एजेंडा कैन काउंटर दिस. अंडरस्टूड? इंक्लूसिव इन, यस और नॉट? अगेन इट इज सपोर्टिंग, देयरफॉर इंडिया विल हैव विच सोसाइटी? इगैलिटेरियन. इंक्लूसिव इनोवेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस और नॉट? इसका मतलब टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन अच्छी हो गई. प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब रिड्यूस होता है? प्रोडक्शन इज मोर देन द व्हाट? सप्लाई इज मोर देन डिमांड. यदि ज्यादा प्रोडक्ट है मार्केट में तो क्या हो जाएगी? डिमांड. और साथ में टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो रिड्यूसेस. यस और नॉट? टेक्नोलॉजी चीजों को सस्ती बना देती है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट.
Yes, inclusive innovation can lower the cost of goods and services and create income earning opportunity for the what? Poor people. Yes, तो यदि हम लोग इनोवेशन को बहुत छोटा बनाएंगे, कॉस्ट की टेक्नोलॉजी है, तो ये प्रोडक्ट किसके पास जा सकता है? आज मोबाइल फोन 500-700 रुपए में है, तो क्या रूरल पीपल कैन हैव मोबाइल फोन? और यही फोन यदि हमारे पास 5,000-7,000 का होता है तो कुछ लोग ही खरीद के रखते हैं। यस, यदि ये 500-700 का नहीं होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज नॉट लेस, तो रूरल इंडिया कैन नॉट परचेज इट। आज के डेट में रूरल इंडिया हैज व्हाट? एवरीवन हैज व्हाट? मोबाइल फोन। यस और नॉट? तो इसका मतलब है वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या करेगा? इनइक्वालिटी को डिक्रीज करेगा। और टेक्नोलॉजी, यस, R&D, इनोवेशन, यदि क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स को लो, एंड इट विल हेल्प इन द सोशल मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। Inclusive innovation can lower the cost of goods and services and create income earning opportunities for the what? Poor people. तो वो सारे प्रोडक्ट्स को, इन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और अपनी इनकम जनरेट को बढ़ा लेंगे। यस, इज इट ओके? अब फोन से ही क्या है, शहर में बोला कि सर मेरे पास अभी आज दूध का प्रोडक्शन ज्यादा आ गया है, तो अभी बोले तो हम और भी लेकर आ जाए आपके दुकान पर। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और बाई चांस वो लेकर ऐसे गया, फोन ऑन नहीं होता तो लेके सर अब मुझे तो चाहिए नहीं। यस, और दूध क्या है, अब वहां तक लेकर दोबारा वापस आओगे तो खराब। तो इसका मतलब पहले फोन कर लेना था, नहीं तो ही कैन डिस्ट्रीब्यूट इन द व्हाट? एट लोअर कॉस्ट इन द विलेज एरिया। तो समवेयर आपको अर्निंग इनकम को बढ़ाता है। यस या नॉट? फोन पे आप आजकल के बैठे हुए, अच्छा कल रेनफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चलो आज ही सोइंग द सीड्स। यस, बाय लिटिल। So technology help in what? Innovation help in what? Increasing the earning of poor people. तो अब हम लोग जा रहे हैं, therefore egalitarian society सब जगह दिखा। Which of the following is the most logical and rational assumption that can be made from the above passage? First, innovation and R&D is the only way to reduce rural to urban migration. It is out of the context of the passage or not? कहीं पे माइग्रेशन के बारे में बात हुआ क्या? यस, हुआ क्या? तो क्यों हम लोग यहां पे बात करें? तो दिस ऑप्शन इज व्हाट? कैंसल्ड। नेक्स्ट वन, तीन बातें मैंने कही है, हेंस देयरफॉर सो, निगेट करना और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट से पहले वो वाले सारे हो जाएंगे, तो बचे हुए को फिर हम लोग निगेट करके देख लेंगे। एवरी रैपिडली ग्रोइंग कंट्री, every rapidly growing country needs to minimize the divergence between productivity in agriculture and other sector. ये तो यदि लिखा रहता India needs to minimize the divergence between productivity and agriculture and other sector, तो मैं बोलता है yes it is there in the assumption। लेकिन क्या बोल रहा है? every rapidly growing country, तो ये तो है ही नहीं, it is out of the context। अगेन इसको निकाल दिया हमने। नेक्स्ट वन इज inclusive innovation and R&D can help to create an egalitarian society। ये लग रहा है कि यही है, आपको भी लग रहा है कि मैं ही कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? यस, देयर आफ्टर आई सेड दैट, तो सी ऑप्शन लग रहा है अभी, लेकिन इसको हम लोग अब यही उल्टा करके बढ़े। इंक्लूसिव इनोवेशन R&D कैन नॉट हेल्प क्रिएटिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो तुरंत हमें फीलिंग आएगा अरे यार कैन वही तो कर रहा है। यदि आप इसको जस्ट निगेट करिए, इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन नॉट हेल्प क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो तुरंत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज को। अंडरस्टूड इट? तो जिसकी फीलिंग आ जाए उसको क्या करना है? जस्ट निगेट करके देखना है, यस और नॉट? नेक्स्ट आई सेड रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड। अरे रैपिड अर्बनाइजेशन इस कंटेक्स्ट में तो कुछ बात ही नहीं किया था। ये बोला गया था कि रैपिड अर्बनाइजेशन इज व्हाट आई सेड दैट सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन को भी हम लोग कम कर दे रहे हैं यदि R&D और क्या रहे? इनोवेशन। तो सोशल इनइक्वालिटी को कौन काउंटर इफेक्ट कर रहा है?
इनोवेशन एंड R&D, पहले लाइन में ही आपको दिखा था पहला पैरा में, एंड इनोवेशन इंडिया विल इंक्लूड एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑल Indians. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality and relieve the pressure created by, ये इस वर्ड में हुआ था, रैपिड अर्बनाइजेशन से जो सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है उसको भी क्या कर दे रहा है, खत्म, एगालिटेरियन सोसाइटी, किसकी वजह से, इनोवेशन एंड। तो ये जो बात कर रहा है कंप्लीटली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, उल्टा ही कहानी बोल रहा है, बोल रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन टेक प्लेस, ये बोल रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, ये क्या मेंशन है वहां पर, रैपिड अर्बनाइजेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड, तो ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। सो विच is looking like a strong assumption, which is looking like a strong assumption, see, is it clear? Yes, see, so क्या क्या आपको ध्यान देना है, yes tell me, लेकिन पढ़ते समय आप सोचिए कि एक बार में आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, अच्छा लगता है, एक बार में नहीं आएगा, आप 5-6 बार जब रिप्लाई करेंगे ना तो you'll start using, दिमाग में पढ़ते समय hence, therefore, अभी मैं यूज कर रहा था, hence there is what, egalitarian society, therefore there is egalitarian society, और बाद में आपको उसमें दिखा वो वही लाइन सम, जब आप हेंस सेंस करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों तीनों अप्रोच को साथ में लेकर चलना होगा, और धीरे धीरे दैट ऑल विल मेक एन एक्युमुलेटिव इफेक्ट टू डू द क्वेश्चन फास्ट, अंडरस्टूड इट, डू नॉट रिलाई ऑन वन, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ पैसेज हो सकता है आपको डायरेक्टली निगेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यू हैव टू व्हाट, डेवलप दिस एटीट्यूड। So read the second assumption and find the answer.